स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन करनी है अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रीफाइसिंग रेशो। ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, x and y ਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ 8:5 ਰੇਸ਼ੋ। z is admitted for 1/5 share, find out the new ratio। x ਤੇ y ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 8:5। ਹੁਣ z ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ 1/5 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਤੀ ਕਿ 1/5 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੈਡ ਦੀ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨया ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ 1/5। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ Z ਸ਼ੇਅਰ 1/5। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, देखो अगर टोटल शेयर 1 है और जेड का शेयर 1/5 है, दैन रिमेनिंग कितना रह जू 1 माइनस 1/5, ये कितना जू 4/5। इसका मतलब जेड़ा 4/5 शेयर है जेड़ा ये आ गया इस दे विच एक्स का भी शेयर है और वाई का भी शेयर है, ठीक है। हुण आपां देखना है कि एक्स का कितना शेयर है 4/5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ और y ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। फोर बड़ा 5 इंटू जो स्टूडेंट्स x का ओल्ड शेयर दे रखे ना आप उस नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 8/13। इस तरीके नाल 4/5 ਵਿੱਚੋਂ y ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5/13। ਇਹ ਆ ਜੂ 32/65 20/60। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ x ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ y ਦਾ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ z ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1/5। लेकिन इत्थे दा नीचे 65 है 65 है, इसलिए इसनूं इक्वल करन दे लई आपां 13 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। हुण तिन्नां दे डिनोमीनेटर सेम है। हुण अपनी न्यू रेशो की बनदी है 32:20:13। ये अपनी न्यू रेशो बन गई। देखो स्टूडेंट्स इस दे विच आपां की कीता है, आपां लेट कीता कि अपने कोल टोटल शेयर 1 है, उस दे विचों जो पार्टनर एडमिट किया सी उसका शेयर लैस करता और जो अपने कोल रिमेनिंग बच गया इट मीनस इस 4/5 दे विच एक्स का भी शेयर है और वाई का भी शेयर है। हुण आपां नूं नहीं पता एक्स का कितना शेयर है और वाई का कितना शेयर है, लेकिन अपने कोल ओल्ड रेशो दी हुई है एक्स एंड वाई की, इसलिए आपां एक्स का शेयर कड्ढण लई और वाई का शेयर कड्ढण लई 4/5 नूं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओल्ड शेयर ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦਾ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ y ਦਾ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ z ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 32:20:13। सैकेंड और थर्ड सम फर्स्ट सम दे नाल दे है वो तुसी खुद सोल्व करना है। और आपां चलदे हां फोर्थ सम दी ओर। देखो स्टूडेंट्स फोर्थ सम दे विच की है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3 रेशो। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। They admitted Z
as a partner for 1/4 share in the profit. Z acquired his share from X and Y in the ratio 3:1. Calculate the new profit sharing ratio. अपने को X और Y पार्टनर ने जिन्हों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3. Z पार्टनर एडमिट किया है बाय दी 1/4 शेयर. Z acquired his share from X and Y in the ratio 3:1. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ X ਤੇ Y ਤੋਂ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ 3/1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ X ਤੇ Y ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ Z ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1/4 Z ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 1/4 ਹੈ ठीक है Z शेयर इज इक्वल टू 1/4 ਜਿਹੜਾ 1/4 ਹੈ ਇਹ X एंड Y ਤੋਂ किस Z ਹੈ ਜੋ ਉਹ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ X एंड Y ਤੋਂ किस ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ X ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ acquired from X जो Z पार्टनर है वो X तो कितना शेयर रह रहे 1/4 का 3/4 इट मीन्स जो 1/4 है उसके विचों 3/4 किसका शेयर है X का X तो लै रहे हैं ये अपने को आ गया 3/16 हुन शेयर acquired from Y तो कितना ले रहे 1/4 1/4 का जो Z का शेयर है 1/4 उसका 1/4 किस तो ले रहे हैं Y तो ले रहे हैं ये अपने को आ गया 1/16 देखो अगर तुसी इस नू टोटल करोगे 3/16 प्लस 1/16 4/16 1/4 बन गया ना Z का शेयर ये हुई है ठीक है ये अपन नू पता चल गया कि X तो किन्नी रेशो दे विच लै रहे और Y तो किन्नी रेशो दे विच लै रहे हुण आपां नू जो आपने एग्जैक्टली कढ़ना किहदा शेयर है X का शेयर कितना बच गया X का ओल्ड शेयर सीगा 5/8 इस दे विचों 5/8 जो X का शेयर सी उसने कितना शेयर Z नू देता 3/16 इसलिए उसके ओल्ड शेयर दे विचों आपां 3/16 लैस कर देंगे ताकि आपां नू X का नवा शेयर पता चल जाए ये तो उसने 3/16 का किस नू देता Z नू देता देखो कैलकुलेट करके आ जाओ अपना 7/16 इसी तरीके नाल Y का शेयर है जिहड़ा Y का न्यू शेयर क्या आ जाऊगा 3/8 माइनस 1/16 इसकी कैलकुलेशन करके आ जाओ 5/16 हुण अपना Z का शेयर अपने को पता ही है 1/4 है लेकिन डिनोमीनेटर सेम नहीं इत्थे 16 है इत्थे 4 है इसनू करन लई आपां 4 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5/4 अपनी न्यू रेशो आ गई देखो स्टूडेंट इस दे विच की कीता आपां क्विक रिव्यू लैने पहला आपां नूं की दे रखिया Z का शेयर दे रखिया 1/4 उस दे विच दे रखिया Z X और Y तो किस रेशो दे विच लै रहा 3:1 ठीक है हुण आपां ने कढना है X का कितना शेयर है गया Y का कितना शेयर है गया ठीक है पहला आपां नूं पता है 1/4 X तो किस X तो लै रहे हैं 3/4 है ना 1/4 का 3/4 वो X तो लै रहे हैं
1/4 ਦਾ 1/4 किस तो लै रहे हैं, बाई तो लै रहे हैं। आप देख लिया एक्स तो कितना रह रहा है 3/16 और बाई तो 1/16। हुण एक्स का आप न्यू शेयर कढ़ते हैं, ठीक है। न्यू शेयर कितना आ गया, पहला अपने को ओल्ड शेयर कितना सी 5/8। 5/8 दे विचों एक्स ने 3/16 तक जैड नूं देता, इसलिए वो लैस कर देंगे। फिर बाई का शेयर किस तरीके नाल आऊगा, उस तरीके नाल जो बाई का शेयर से 3/8 उस दे विचों उसने जैड नूं कितना देता 1/16, वो लैस करके अपने को न्यू रेशो आ जाऊगी 7:5:4। कमिंग टू द नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम देखो, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1। They agree to admit C into partnership, who is to get 1/8 share. He acquired his share as to 1/32 from A and 3/32 from B. Calculate the new profit sharing ratio. देखो इस दे विच भी की दिता है, ए एंड बी है पार्टनर्स ने, वो की उन्होंने दी ओल्ड रेशो दे रखी है 3:1। उन्होंने एडमिट किया C इंटू द पार्टनरशिप बाय 1/8 शेयर। नवा उसने नवे पार्टनर नूं एडमिट किया 1/8 शेयर दे नाल, जो कि वो 1/8 शेयर है वो एक्वायर करता है ए तो 1/32। ए है जिहड़ा वो 1/32 दिंदा है अपने शेयर दे विचों, और बी है वो 3/32 दिंदा है, ठीक है। उस दे विच जो अपना लास्ट सम सी उस दे विच रेशो गिवन सी, इस दे विच प्रॉपर शेयर गिवन है। अपन देखते हैं इस सम नूं किस तरीके नाल निकाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट, जो अपना लास्ट सम सीगा उस दे विच इत्थे रेशो गिवन सी आपां नूं, ठीक है। आपां नूं की गिवन सी कि रेशो गिवन सी। अपने आप सब तो पहला आपां ने की निकालिया सी, शेयर निकालिया सी कि जो एक्स है वो कितना शेयर सैक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपां इत्थे की निकालिया सी, शेयर निकालिया सी, कितना शेयर आ गया, ठीक है, कि एक्स 3/16 दे रहे अपने जो शेयर है अपने शेयर दे विचों 3/16 वो जैड नूं दे रहा है, बाई 1/16 दे नाल अपना शेयर दे रहा हैगा जैड नूं। इत्थे इन्हां ने आपां नूं यही चीज़ गिवन है क्वेश्चन दे विच, ठीक है। इत्थे रेशो ना दे के आपां नूं शेयर गिवन है। देखो स्टूडेंट, ए दा कितना शेयर है, ए शेयर इज 3/4। ए दा शेयर है 3/4, उस दे विचों ए 1/32 किस नूं दे रहा है, सी नूं दे रहा है, ठीक है। ए दा न्यू शेयर कितना आ जू 3/4 दे विचों अगर आपां 1/32 लैस कर दिए, देखो अपना सोल्व करके आ गया 23/32। हुण बी दा शेयर देखो, बी दा शेयर है 1/4, उस दे विचों ओह 3/32 किस नूं दे रहे हैं, सी नूं दे रहा है। बी दा न्यू शेयर अपने को आ गया 1/4 माइनस 3/32। सी का शेयर अपने को आएगा 1/8। इसनों बराबर कर देंगे, अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गई 23:5:4। स्टूडेंट सेवंथ सम देखो, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। Z was admitted as a partner. X surrendered 1/7 of his share and by 1/3 of his share in favor of Z. Calculate the new profit sharing ratio. X and Y partners ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7:3। ਜੈਡ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸ अपना 1/7 ऑफिस शेयर अपने शेयर का 7/10 का 1/7 शेयर है वो जैड नूं दे रहे हैं और बाई 1/3 उसका शेयर है 3/10 3/10 का 1/3 जैड नूं दे रहे हैं सरेंडर कर रहे हैं कि आप कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस सम दे विच की है एक केस किहड़ा है जदों शेयर सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर इज गिवन। जो आपां नूं किन्ना जिहड़े ओल्ड पार्टनर है अपने शेयर दे विचों किन्ना शेयर जो नवां पार्टनर है उसनूं सरेंडर कर रहे हैं वो अपने कोल गिवन हुंदा है। उस केस दे विच आपां किस तरीके नाल सम नूं सोल्व करदे हां। लैट्स सी। देखो एक्स दा ओल्ड शेयर किन्ना है X old share is 7/10। X surrender X अपने शेयर का 7/10 का कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं 1/7। X surrendered 7/10 का 1/7 अपने ओल्ड शेयर है जिन्ना उसका अपने शेयर का 1/7 शेयर सरेंडर कर रहा है। ठीक है। इट मीन्स एक्स 1/10 दे रहा है अपने शेयर दे विचों 1/10 किस नूं दे रहे जैड नूं दे रहा है। हुण आपां एक्स का न्यू शेयर कितना आ गया एक्स न्यू शेयर इज उसका जितना शेयर है 7/10 उस दे विचों वो जैड नूं कितना पार्ट दे रहा है जैड नूं कितना दे रहा है 1/10 वो आपां लैस कर देंगे। एक्स का न्यू शेयर आ गया 6/10। इसी तरीके नाल आपां बाई का कढ़ना है। बाईस ओल्ड शेयर अपने कोल है 3/10 3/10 दे विचों वो 1/3 जैड नूं अपने शेयर का 3/10 का 1/3 जैड नूं दे रहा है। देखो वाई सरेंडर 3/10 का 1/3 इट मीन्स बाई भी अपना 1/10 किस नूं दे रहे जैड नूं दे रहा। हुण अपने कोल बाई का न्यू शेयर आ गया उसका कितना शेयर सी 3/10 3/10 दे विच उसने कितना जैड नूं देता 1/10 उस कोल कितना रह गया 2/10। ये आ गया एक्स का न्यू शेयर ये आ गया बाई का न्यू शेयर। जैड का कितना होगा हुण आपां जैड का देखते हैं। जैड शेयर देखो स्टूडेंट जैड का शेयर कितना एक्स कितना दे रहा है 1/10 1/10 एक्स तो आ रहे हैं उसको 1/10 कौन दे रहा है बाई दे रहा है। इसनों आप प्लस कर देंगे अपने को आ गया 2/10 2/10 किसका शेयर है जैड का। एक्स का अपने को कितना सीगा 6। अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो एक्स का सी 6/10 नवा शेयर बाई का अपने को 2/10 और जैड का नवा शेयर कितना बन गया जो एक्स सैक्रीफाइस कर रहा सी और जो बाई अपना सरेंडर कर रहा सी उसनों प्लस करके 2/10 अपने को न्यू रेशो आ गई 6:2:2। स्टूडेंट्स देखो आप 11 सम देखते हैं हम ए बी एंड सी आर दी पार्टनर्स इन इक्वल रेशो मतलब 1:1:1। A gives 20% and C gives 30% of his share to new partner D। D partner admit होया होना है उसनों A 20% दे रहा है अपने शेयर दे विचों और C 30% दे रहा है लेकिन B का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हैगा। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सैक्रीफाइसिंग रेशो। देखो
पहला ए दा सैक्रीफाइस देखो कितना कर रहा है, ਉਹ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ए ਦਾ 1/3 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 20%, ਇਟ ਮੀਨਸ 20% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ 1/5 ਦੇ 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 1/5 किस ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ डी ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 1/5 करके आ गया 1/15, इट मीनस इन्ना शेयर वो डी ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ सी ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, सी ਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/3 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 30%, इट मीनस 1/10 1/10 करके अपने को आ गया, सॉरी 3/10 3/10 करके अपने को आ गया 3/30 1/10 1/10 वो डी ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं, ठीक है। ए 1/15 डी ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं और सी 1/10 डी ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं। देखो अपनी सैक्रीफाइसिंग रेशो की बनती है इन्हों के डिनोमीनेटर्स पहला सेम करो 1/15 इंटू 3 कर दिए इंटू 2 2/30 1/10 इंटू 3/3। जो इन्हों के डिनोमीनेटर्स इक्को जी किते तो अपने को सैक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2:3 रेशो, ये अपनी होगी सैक्रीफाइसिंग रेशो। हुण आपां न्यू रेशो निकालते हैं, देखो ए दा कितना शेयर न्यू शेयर देखो दे आपां कितना बचिया, ए दा शेयर सीगा 1/3, उस दे विचों ए ने सैक्रीफाइस कितना करता 1/15, इट मीनस उस कोल कितना रह गया 4/15। बी ने कुछ नहीं सैक्रीफाइस किया सी, बी का शेयर 1/3 सी, इसनू करांगे आपां अगर इस आजू 5/15 और सी का शेयर देखते हैं आपां, सी का कितना सीगा 1/3, उस दे विचों वो कितना दे रहे 1/10, ये करके सोल्व अपने को आजू 7/30। डी का हूँ शेयर देखते अपने को कितना बनता है, डी ए तो कितना लै रहे हैं 1/15 और सी तो कितना लै रहे हैं 1/10, अपने को टोटल डी का शेयर आ जाऊ 5/30। हुण अपने को न्यू रेशो देखो स्टूडेंट्स की बनती है, ए का न्यू शेयर 4/15, बी का 5/15, सी का 7/13 और डी का 5/30। इन्हों की डिनोमीनेटर सेम करके अपने को रेशो बन जू, इसनू 2 नाल हो जाऊगा, इसनू 2 नाल करके 8 ये 10, ठीक है 8:10:7:5, ये अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन चुकी। क्विक रिव्यू देखते हैं आप की है, अपने को 3 पार्टनर सीगे, उन्हों की रेशो इक्वल सीगी, ए 20% सैक्रीफाइस कर रहा सी अपने शेयर का, सी 30%, किसनू डी नवा पार्टनर आप ऐड किया सीगा। देखो ए ने सैक्रीफाइस किया, उसका शेयर सी 1/13, उस दे विचों उसने 20% कि इक्वल होंगे 1/5, 1/5 शेयर किसनू दे रहा है डी नू दे रहा है, 1/5 करके अपने को आ गया 1/15, इट मीनस 1/15 शेयर वो डी नू दे रहा है। सी सैक्रीफाइस कर रहे सी अपने शेयर का 30%, इट मीनस 30% किदा होया 3/10 करके अपने को आ गया
1/10 1/10 ਉਹ डी ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ठीक है, अपनी सैक्रीफाइसिंग रेशो बन गई। इसनों अगर डिनोमीनेटर इक्वल करांगे दैन अपने को आ जाऊ 2:3 रेशो। उस तो बाद ਆਪਾਂ न्यू रेशो निकाल लिया। ए ਦਾ शेयर कितना ਸੀਗਾ 1/3 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ डी ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 1/15 1/15 ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4/15। बी ਦਾ शेयर ਸੀਗਾ 1/3, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ 5/15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1/10, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 1/10 ਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 7/30। ਡੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 1/15, ਉਹ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ और डी सी तो कितना ले रहे हैं 1/10, उसनों प्लस करके अपने को कितना आ गया 5/30। लेकिन सी और डी दे डिनोमीनेटर 30 है और ए बी दे डिनोमीनेटर्स 15 सी, इसलिए आप 2 नाल मल्टीप्लाई करती ए और बी दे शेयर नो दे न्यूमीनेटर्स नो सेम करने लिए। अपने को आ गया 8:10 7:5। ये अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। नेक्स्ट सम 13 सम देखो स्टूडेंट्स, Bat and Ball are the partners in 2:3 ratio. They admitted wicket and globes as new partners. Bat sacrificed 1/4 of his share in the favor of wicket. Bat है जो ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 1/4 ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ 1/4 of his share in favor of globes। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਬੋਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਵਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 1/4, अपने शेयर का 1/4। हूँ आप की कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी किस तरह निकलेगी। पहले बैट दी देखो, बैट शेयर किन्ने का 2/5। बैट सैक्रीफाइस किन्ना कर रहे हैं सैक्रीफाइस 4 विकेट, अपने शेयर का 2/5 ਉਹਦਾ शेयर है 2/5 ਉਹਦਾ शेयर है, उसका 1/4। ये शेयर किस ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਕਟ ਨੂੰ। ठीक है, ਹੁਣ बैट ਦਾ न्यू शेयर कितना आ गया, बैट्स न्यू शेयर उसका शेयर से 2/5, उसके विचों उसने 2/20 देता विकेट नूं। हुण उसका शेयर देखो कितना रह गया, सोल्व करके अपने को आ गया 6/20। एक ही अपना बैट का न्यू शेयर है। हुण आप बॉल का देखना है, बॉल का शेयर कितना सीगा 3/5। ਬੋਲਸ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਵਸ ਨੂੰ 1/4 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੋਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ 3/5, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 1/4। 1/4 ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 20 12 - 5 7/20। इत्थे देखो स्टूडेंट्स लैंग्वेज का फर्क है, इत्थे 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर 1/4 दे रहे अपने शेयर दे विचों। ठीक है, हुण की अपने फ्रॉम ही शेयर बोल है वो अपने शेयर दे विचों दे रहा है, ये वो अपने शेयर का 1/4 पार्ट दे रहा है। इत्थे लैंग्वेज दे विच फर्क है। ठीक है ना, ये अपने को आ गया 7/20। हुण अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखते हैं अपनी की बनती है। देखो बैट का न्यू रेशो अपने को आई सी 6/20, बैट की आप 6/20 लिख दिया, और बॉल की अपने हुणी निकाल ली है 7/20। बैट ने सैक्रीफाइस किया 2/20।
ये अपने को आ गई बी किट दी 2/20 और ਬੋਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 1/4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अगर डिनोमिनेट सेम करने हैं 5/20 ये अपनी न्यू रेशो है 6:7:2:5 दिस इज आवर न्यू रेशो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम अपना 17th देखो XYZ are partners in 5:3:2 ratio. They admitted A for 1/5 share and Y will retain his old share. Find out new ratio. XYZ अपने partners ने उन्हों की रेशो है 5:3:2 रेशो। They admitted A admit किया A नू by 1/5 शेयर। जो Y है वो अपना शेयर अपना जिन्ना ओल्ड शेयर है उन्ना ही रखूगा। इट मीनस बाई कुछ भी सैक्रीफाइस नहीं कर रहा ए नू अपने शेयर ਲਈ, ठीक है। और ਆਪਾਂ न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। बाई का कुछ भी सैक्रीफाइस नहीं होगा। इट मीनस जो एक्स और जेड है पार्टनर्स वही सैक्रीफाइस करनगे। एक्स एंड जेड है वो सैक्रीफाइस करनगे, ठीक है, टू ए इन दी रेशो 5:2। एक्स की रेशो कितनी है 5 और जेड की 2। जो वाई है वाई का शेयर 3/10 ही रहूगा, 3/10 ही रहूगा, ठीक है। वाई शेयर टू रिमेन द सेम क्योंकि उसने किया है कि बाई विल रिटेन हिज ओल्ड शेयर। जितना उसका ओल्ड शेयर है उतना ही रहेगा, इसलिए अपना इसका शेयर तो सेम ही रहूगा 3/10। ये तो अपना शेयर उतना ही लूगा, ठीक है। ये भी अपना कंफर्म हो गया। ए का शेयर कितना है ए नू आपां किन्ने शेयर लिए एडमिट किया 1/5। हुण आपां देखना है जो पार्टनर एक्स एंड जेड है वो कितना शेयर सैक्रीफाइस करते हैं ए लिए। ये भी आप ध्यान दे विच रखना है। बाई बिल्कुल सैक्रीफाइस नहीं कर रहा, बाई का शेयर सेम है। सिर्फ सैक्रीफाइस कौन कौन पार्टनर कर रहे हैं एक्स एंड जेड। देखो एक्स सैक्रीफाइस फॉर ए उसका शेयर कितना है 5/7। वन बाय 5 दे विचों एक्स कितना दे रहे हैं 5/7, ठीक है। और वाई का सैक्रीफाइस देखते हैं, सॉरी जेड का सैक्रीफाइस देखते हैं फॉर ए 1/5 दे विचों 2/7। एक्स का न्यू शेयर देखते हैं कितना आ गया। एक्स का ओल्ड शेयर सी 5/7 5/10 5/10 सीगा एक्स का ओल्ड शेयर। उस दे विचों उसने 5/35 सैक्रीफाइस करता ए नू, ठीक है। उसी तरीके नाल आपां जेड का शेयर न्यू शेयर निकाल लिया। 2/10 उसका ओल्ड शेयर सी, उस दे विचों जो जेड ने ए लिए सैक्रीफाइस किया 2/35 वो लैस करता। अपने को न्यू शेयर आ गया जेड का 10/70 और एक्स का न्यू शेयर आ गया 25/70, ठीक है। ये हो गया एक्स का शेयर, ये हो गया जेड का न्यू शेयर। बाई का आप सेम ही रखना सी, ये हो गया बाई का न्यू शेयर। इसका डिनोमीनेटर सेम कर लाँगे बाय मल्टीप्लाई 7।
20y/70। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, x ਬਾਈ z ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋ, x ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 5/30 ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ z ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 2/30 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 7/35। 7/35 ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 14/35। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, x ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 25/70, बाई ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 21/70 और z ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 10/70 और अपना a ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 7/35 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ 14/70। ठीक है, ये अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। आई होप सो स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ टॉपिक समझ आया होवे। थैंक यू।